Okay, students, in our last class, we have discussed about the difference between positive and normative economics and the meaning of micro and macro. Okay, today we are moving towards the next topic, that is difference between micro and macro. Okay, first of all, students, I would like to clear you that what was micro and macro. Micro and macro are the two branches of economics. Okay, as we study in economics about the economic problems, क्या पढ़ रहे थे हम economics में? About the economic problems. Okay, so इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो वी स्टडी द प्रॉब्लम्स बट रिलेटेड टू सम इंडिविजुअल यूनिट्स, and in macroeconomics we study the economic problem as a whole. Okay, so today we will study the difference between micro and macro. For this we have to see the difference. Please wait for a while. Yes, here in front of you there is a difference between micro and macro, students. First difference is the word micro has been derived from the Greek word micros. In the definition also we have studied that microeconomics, ये micro word कहाँ से originate हुआ है? Micro word जो है ये it is has been derived from Greek word. Greek word क्या है? M-I-K-R-O-S, that is micros. Okay, which means small. It means in microeconomics, the word micro has been derived from Greek word micros, which means small. But the word macro has been derived from the Greek word macros, M-A-K-R-O-S. Okay, so in this way we can say the meaning of macros is large. Okay, so second point of difference is it studied how about individual relations or issues like household, firms, consumers. Students, in microeconomics we will study the economic problems related to the individuals. For example, we can say कि कोई भी economic problem है, ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है कि एक कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल या फिर एक प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेता है किसी भी अपनी प्रोडक्ट को, या फिर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले क्या क्या चीजों को उसे ध्यान में रखना होता है. और हमें ये भी पढ़ना है कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल कैसे डिसाइड करती है कि व्हाट आई वांट टू प्रोड्यूस. ओके, सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स ओनली. एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा, एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करेगा. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एट द लेवल ऑफ होल. होल का मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे अभी गवर्नमेंट कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझा रही हूँ एग्जांपल देके कि एक एक कस्टमर की क्या नीड है, एक एक इंडिया में रहने वाले पर्सन की क्या नीड है, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो किसका एग्जांपल होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. बट अगर गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी के बारे में एज अ होल डिसाइड कर रही है कि कौन से पर्सन को क्या नीड है, तो दैट विल बी द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. I hope it is clear. Now coming to the third difference, that is its main objective is to analyze the principles, problems and policies for the achievement of the goal of optimum allocation of resources. What does this mean, students? That the main objective is to analyze the principles. Economy, microeconomics में हम क्या study करते हैं? Mainly the goal of allocation of resources. It means in microeconomics we study. अब सबसे पहले आपको यहाँ ये meaning समझने की जरूरत है. What is the meaning of allocation of resources? Allocation means study, students. In general, we say allocation, assigning the resources. हमने definition में क्या study किया था? That resources are scarce, है ना, but human wants are unlimited. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या डिसाइड करना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से असाइन करें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट that we can achieve the goal of optimum allocation of resources.
ऑप्टिमम का मतलब है या फुली, ओके, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है असाइनिंग द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स in a best possible manner. Okay, in macroeconomics it investigates principles, problems and policies related to achievement of full employment. Here students you can see the word full employment. Microeconomics में हमने क्या स्टडी किया? Only allocation of resources, okay, but macroeconomics में क्या स्टडी करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी. इसमें हम सारी प्रिंसिपल्स की, प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे. किससे रिलेटेड? फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल. इसमें ये नहीं डिसाइड किया जाएगा कि एक कंज्यूमर की क्या नीड है, एक कंज्यूमर डिसाइड करता है. व्हाट वी हैव टू डिसाइड, गवर्नमेंट विल डिसाइड और इट विल डिसाइड एट द लेवल ऑफ होल. इज इट क्लियर टू स्टूडेंट्स? नाउ coming to the fourth point, okay, fourth point is deals with micro और macro. किसके साथ डील करते हैं? Please listen carefully. It deals with how consumers and producers make their decisions depending upon their given budget and other variables. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर डिसीजंस. देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है मैंने, देयर. स्टूडेंट्स में एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे करना. इट इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स कैसे डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स वर्ड यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? जस्ट लाइक प्राइस, कॉस्ट, इनकम, प्रॉफिट, ओके, डिमांड एंड सप्लाई. कि यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है. कंज्यूमर अगर मार्केट में जाता है तो वो कैसे डिसाइड करता है व्हाट परचेज, हाउ शुड आई परचेज और हाउ मच क्वांटिटी आई शुड परचेज. But in microeconomics we study consumers, individuals. But in macroeconomics में हम किसके साथ डील करते हैं? How different economic sectors, यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया sector, okay, sector means whole economy, such as households, industries, government and foreign sector make their decisions. बहुत बड़ा डिफरेंस है ये. इसमें डील करते हैं हम सिर्फ पर्टिकुलर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं पूरे इकोनॉमिक सेक्टर के साथ. अब देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड वर्ड्स आया है फॉर एग्जांपल. तो हाउस होल्ड का मतलब कंट्री में रहने वाले सभी हाउस होल्ड्स की स्टडी करेंगे हम, ओके. इंडस्ट्रीज वर्ड आया है मतलब कंट्री हर एक इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे. गवर्नमेंट पूरी स्टडी करेगी पूरी कंट्री से रिलेटेड, ओके. बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी रिलेटेड टू द सिंगल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ओनली. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी आर सीइंग दैट विच स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग वेल इन क्लास 11th एंड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. इफ आई एम मेकिंग द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मार्क्स, एक एक बच्चे के मार्क्स में देख रही हूँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट इफ आई एम वॉचिंग द स्टडी, इफ आई एम वॉचिंग द मार्क्स ऑफ होल क्लास एज अ वन यूनिट, पूरी इकोनॉमिक्स 11th क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है, एवरेज निकाल रही हूँ मैं, दैट विल बी द स्टडी ऑफ मैक्रो economics. Okay, now coming to the fifth point, that is method. कौन सा मेथड हम यूज करते हैं माइक्रो में? It uses the method of partial equilibrium. अब स्टूडेंट्स आपके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड भी बिल्कुल न्यू वर्ड है. What is the meaning of equilibrium? This word will you study this word in detail in class 12th also and in the chapters of class 11th also. लेकिन यहाँ मैं एक जनरल मीनिंग बता देती हूँ. Equilibrium means state of rest. State of rest means in which two or more variables are equal to each other. For example, आप as a student you have imagined that I will score 10 marks out of 20 in my science exam, okay, as a 10th class student. But if you have scored 10 marks, okay, same marks you have scored, it means you are in the state of equilibrium. जितना आपने डिसाइड किया था उतना ही आपको मिल गया है, उतना ही स्कोर कर लिया. इट मीन्स आप कौन सी स्टेट में हो? आप रेस्ट की स्टेट में हो. इट मीन्स यू आर इन इक्विलिब्रियम. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? पार्शियल मीन्स हाफ, दैट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट. हम इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी करते हैं कि एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे डिसाइड होती है, कैसे प्राइजेस डिसाइड होते हैं. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम, यहाँ जनरल का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स. मैक्रो में हम हर एक मार्केट की स्टडी करेंगे. मार्केट रेफर्स टू जैसे क्लोथ्स मार्केट और वी कैन से फूड आइटम्स मार्केट, कैपिटल गुड्स मार्केट, सभी मार्केट्स की एक साथ स्टडी करेंगे. बट इन
Microeconomics we study only related to one market. That's why it is known as partial and it is known as general. Okay. Coming to the sixth point, the major microeconomic variables. Students, variables word को बहुत ध्यान से समझना है because 1 markers में पूछ लिया जाता है what are the variables. Variables students refers to the price, individual consumer demands. मतलब variables का meaning what we are going to study in economic, microeconomics. Micro में हम किस variable के बारे में study करेंगे? Related to demand, wages, rent, profit, revenues, etc. Okay. But in macroeconomics we will study about aggregate price. Aggregate word का मतलब यहाँ क्या है? Total. We will study about total price, total demand, total supply, inflation and unemployment. What is inflation? Inflation refers to the condition where the prices of all the goods rises very much in the market. बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है जब मार्केट में हर एक चीज की प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं. That is known as inflation. पॉइंट इज कौन कौन सी थ्योरी हम स्टडी करेंगे? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड. ओके. थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ 1 second students, let me tell you, whenever the video will stop, please join with the same link again. Okay, if it is not possible, I will send you the next link because the class is going to over within a minute. Okay, please join with the link again. Okay, we are continuing with this. Whenever the class overs, please join with the link again. Now, various theories studied are. कौन-कौन सी theories के बारे में हम study करेंगे इसमें? Yes, theory of consumers behavior, consumer की behavior की study हम करेंगे इसमें. Theory of producer behavior, मतलब अलग-अलग producers किस तरीके से अपनी supply को decide करते हैं. Theory of price determination, it means अलग-अलग goods के prices को किस तरीके से determine किया जाता है